रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन द वीडियो कभी अलविदा ना कहना द रिविजिट बाय ओनली देसी। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम कुंडली नायक, वेलकम टू माय चैनल लिखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। From the director, known for making dreamy, unrealistic, dramatic movies, comes with something so serious you really don't want to watch it with your spouse. Especially अगर नई नई शादी हुई हो और अगर अभी भी डिवोर्स हुआ है तब तो ये रिविजिट भी ना देखो तो ये अच्छा होगा. So be ready to get super uncomfortable with कभी अलविदा ना कहना. A movie जिसे देख के हम सबको सीखने को मिला कि एक husband with 10 years of marriage with kids can still cheat on his wife. जिससे हम सबको पता चला कि if you have a lot of money, then तुम्हारी wife फिर भी तुम्हारा काट के किसी homeless आदमी के साथ भाग सकती है. It's a story of Dave, a verified asshole with blue tick, who's married to Rhea for last 5 years, and he's the worst husband one can ask for. Jealous? कि मैं तुमसे ज्यादा कमाता? चले अब जब जाना चाहेंगे हम चलेंगे. पूछ क्यों रही है? एक सिंपल सा सवाल पूछा था कि मैंने प्रमोशन के लिए मना कर दिया तुम्हारे बारे में सोच के. प्रमोशन के लिए मना ही कर दिया था तो फिर मुझे बताने की क्या जरूरत है? जता रही हो मुझे. Why are you so toxic, man? You live in her house. Dave is supposed to be David Beckham's first copy with like tattoos and shit. जिसमें लिखा हुआ है कि I got the worst taste in English font. Seriously, it took me like 8 minutes to figure out that the first letter is we. लेकिन देव को एक चीज से बहुत प्यार है और वो है रोड में कचरा करना. और ऐसे ही कचरा करते वो मिलता है माया से. प्लीज गार्डन को गंदा मत कीजिए, मैंने अभी साफ किया. It's a park, not a garden. आज माया की शादी है, so she decides to take tips from him. क्या सोच के शादी की? सोचकर कौन शादी करता है? So funny, shut the fuck up. फिर वो बताता है कि उसने कुछ होता है देख के शादी की थी. प्यार दोस्ती. दिया और मैं कॉलेज से एक दूसरे के दोस्त थे. फिर हमने सोचा एक दोस्त के साथ पूरी जिंदगी गुजारने से बेहतर और क्या हो सकता है. एक दोस्त के साथ पूरी जिंदगी गुजारने से बेहतर. और माया कहती है कि चलो एक स्ट्रेंजर बोल रहा है तो शादी कर ही लेती हूँ. और फिर बाहर निकल के ये हरामखोर च्युइंगम नीचे फेंकने वाला होता है कि something very satisfying happens. Why are you throwing garbage on the road? Now he can't walk properly, लेकिन गाने आते ही भाई भागने लगता है. Because him just limping here would be weird. This movie has all the best things from Kal Ho Na Ho, like SRK's open arms, subtle fat shaming, फुटबॉल के फील्ड अपनी फुटबॉल को ले और उठ जा से. neck sniffing, ये तो हर मूवी में होना चाहिए. his signature cry, and obviously Karan Johar's weird obsession with Brooklyn Bridge. The movie literally starts from Brooklyn Bridge. Dave और माया रोज मिलते हैं Brooklyn Bridge के पास, घूमने जाते हैं Brooklyn Bridge के पास, प्यार होता है Brooklyn Bridge के पास, ब्रेकअप होता है Brooklyn Bridge के पास, घर से निकाल दिए जाने के बाद जाता है Brooklyn Bridge के पास. Dave नया घर कहाँ लेगा? Brooklyn Bridge के पास. घर पे फोटो किसकी लगी होगी? Brooklyn Bridge की. Like what the hell is going on? And remember that grandma from Kal Ho Na Ho? She's the flower lady in this movie. But why do I know this, man? I really need a life. After 4 years, Dave is still an asshole. But Maya is a part-time teacher now and a full-time cockblocker. She looks as uninterested as me on unpaid internship. Watch her turning a cute conversation into a toxic argument for no reason. बच्चा बनना छोड़ दिया तो फिर तुम किसकी देखभाल करोगी? मेरे अपने बच्चे तो हो नहीं सकते, क्यों ना मैं तुम्हें अपना बच्चा मानूं, right? Come on, Maya. Bitch, he was just trying to be cute. माँ नहीं बन सकती. हर बात पे बुरा लग जाता है. She doesn't love Rishi and you'll never know why. Like seriously, this movie doesn't tell you what's her problem with Rishi. Dave is also not happy with Rhea क्योंकि सोचकर कौन शादी करता है? and since their relationship not working, Rishi के dad suggest करते हैं कि दो अजनबी, एक हालात, फिर दोस्ती, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व. और अब माया देव से कहती है मेरी शादी टूट रही है देव, मैं अकेले अपनी शादी को नहीं बचा सकती, मुझे एक दोस्त की जरूरत है. दोस्त की नहीं भड़वी, तुझे कपल्स काउंसलिंग की जरूरत है. She took 3 years to say yes. से 3 साल लगे मुझे हाँ कहने में. और उसके बाद भी she took the wrong fucking decision. Get your shit together, Maya. अब देव और माया एक दूसरे की हेल्प करने के लिए रेडी है. चलो फिर से रैपर फेंक दिया. But Maya cares about the environment, so she saves the cleavage. Now they meet every day to share their problems. हमने रिया और ऋषि के बारे में बहुत सारी बातें की. And finally, they decide to fuck in a hotel room. बताओ इनका यहाँ घावा कब चल रहा है, वहाँ उनके पार्टनर्स बोल रहे हैं Just wanna say की शादी सबसे खूबसूरत रिश्ता है. Oh man, this is so sad. Where's the party tonight? In hotel room. Where's the party tonight? Your marriage doomed. शादी के तो लग गए हैं जी पकौड़े. Where's the party tonight? Imagine she's asking if he has the protection and he says, what if I don't? You'll get pregnant? No, he's an asshole. He can actually say that. He even tells her that her boobies are not big enough. सेक्सी नहीं हो यार, ना आगे से ना पीछे से. Because you don't. You're gonna have. But she falls in love with this guy. And throughout the movie she's acting like she doesn't know what's going on.
तेरे को क्या लगता है क्या कर रहा है वो? हम क्या कर रहे थे? बहन जब वो होटल रूम बुक कर रहा था तेरे को क्या लगा? अंदर जाके लूडो खेलोगे? शादी में बहकना बहुत आसान है। आई पर्सनली फील कि हर रिश्ते की हर चीज है। माया यू टेल मी, तुम्हें क्या लगता है? They just had sex last night. Now the extramarital affair is in the air. Maya usually can't stand even a little bit of stain. लेकिन जब Dave disgusting चीजें करे तो she's like, oh my god, he's so cute. Yeah. That's the problem with नया नया प्यार. अगले की टट्टी भी रेनबो कलर की दिखती है. And at this point they're enjoying infidelity like it's a joke. माया तुम्हें डायमंड्स पसंद है? Yeah, of course. अपने हस्बैंड से कहो तुम्हें ला देगा। Yeah. But Dave still loves his son. यार मर्दों को भले दूसरे की वाइफ पसंद आए, लेकिन बच्चे सिर्फ खुद के ही पसंद आते हैं. Man, who knew this chicken little looking boy will turn out to be like this? Ow! But seriously, Asas, holla at me. Now spend majority of the movie wondering why Maya is tearing up from only one eye. She even cry having sex, which is kind of concerning, but Dave is like, I'm just gonna drink it. लेकिन यार इसमें देव और माया की क्या गलती है? वो तो बता रहे थे, लेकिन कोई सीरियसली नहीं ले रहा था. मेरा किसी के साथ अफेयर हो रहा होता तो? He thought she's joking, but she wasn't. किसी और के साथ वो माया है। He wasn't funny. They thought he's joking, but he wasn't. आपकी बीवी का पीछा जरूर कर रहा हूँ। ऋषि को लगा he's joking, but he wasn't. परसों हम दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी है, उन दोनों के लिए कुछ स्पेशल करते हैं। दोनों को छोड़ देते हैं। They both thought they're joking, but they weren't. पार्टी सिर्फ दूसरों की बीवियों को छूने के लिए होती है। Don't even think about that. मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए। They both thought they're joking, but guess what happened? बताओ, ये मूवी देखने के बाद तुम्हारा स्पाउस कभी मजाक में बोल दे कि they like someone else, तुम्हारी फटेगी नहीं? Now watch these two using their spouses to make their affair jealous. They are literally faking love to their partner right now. You know how fucked up that is? Where did he touch you? कहाँ छुआ? यहाँ छुआ? यहाँ छुआ? यहाँ छुआ? अभी इतनी प्रॉब्लम है तो वाइफ को छोड़ के माया के पास आ जाना. छोड़ पाओगे तुम रिया को? बोलो. No. वाह, भड़वे को दोनों चाहिए. जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकता। Joke me, Daddy. और ऐसे बिगड़ते हालात देख बड़े कहते हैं कि घर घर की यही कहानी। अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। And now they want Rhea and Rishi to become friends. दो अजनबी, एक हालात, फिर दोस्ती, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व। Uncle, last time you recommended this to these two, and let me tell you, it did not go as expected. लेकिन एक दिन देव ऊपर से कर रहा होता है और तभी वो पकड़े जाते हैं. और अब माया फाइनली ऋषि को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन तभी ऋषि के डैड को हार्ट अटैक आता है. वो बस छोड़ के जा रहे हैं। And Maya's like, trust me, honey, he's not the only one जो तुझे छोड़ के जा रहे हैं. Man, that thug between her hand and lip looks stronger than their marriage right now. और finally Maya उसे छोड़ने ही वाली होती है कि वो कहता है. At this point, Maya's like, fuck my life. अब माया भी देव जैसी बन चुकी है. They're both like, मरा है अमेरिका, हमारे यहाँ तो ऐसे ही फेंक देते हैं. और अब देव रिया को सब कुछ बता देता है. मेरी जिंदगी में कोई और है। मैं मजाक नहीं कर रहा। दोनों के रिश्ते को एक मौका और देना चाहता हूँ। And Ria's like, oh, you're so generous. मुझे एक और मौका, बग मैं दूरी. On the other side, Rishi throwing rich people वाला tantrum. यार मुझे भी इतना रिच बनना है कि चीजें तोड़ सकूं जब गुस्सा है. अभी तो एक पेंसिल भी नहीं फेंक सकता. And she's like, speak no evil, see no evil, hear no evil. लेकिन ये सब में सबसे ज्यादा स्मार्ट है देव की माँ. उसको पता है देव के पास घर तो है नहीं. मेरे पोते की आंखें मुझसे पूछ रही हैं कि क्या मैं भी उसका साथ छोड़ दूंगी। ये मुझसे नहीं होगा रिया, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बड़े चालू हो आंटी. डिवोर्स के 3 साल बाद ऋषि फिर से माया को मिलने जाता है. And he is surprised to see the picture of, I don't know, John Cena. Rishi is marrying again with someone 10 times hotter than Maya. लेकिन उस टाइम सोशल मीडिया तो उतना था नहीं, तो उसकी जलाएगा कैसे? इसलिए वो कहता है कि And I want you to be the best man at my wedding, Maya. बेस्ट मैन. तो जब तुम लोग पिक्चर लोगे, एक साइड वाइफ होगी और दूसरी साइड एक्स वाइफ होगी. That's some rich people shit, man. We middle class people can't pull this off. और अब ऋषि माया से कहता है कि तू जा, जी ले अपनी जिंदगी. और कोइंसिडेंटली आज ही देव कनाडा जा रहा है. So she has to run fast and find him before the train leaves. क्योंकि ना ये बॉलीवुड है, यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेन लेके नहीं जा सकती वहाँ. पूरी मूवी में उन्होंने फोन में बात की है, लेकिन वो अभी उसको कॉल नहीं करेगी to make things more dramatic. And after 1 death, 2 divorce and 3 traumatized people, देव और माया एक हो जाते हैं. और इसी के साथ this movie gives us a very strong life lesson. प्यार करना है तो अब माफी मांगना है, तो अब हाथ पकड़ना है, तो अब चीट करना है तो Oh, hello Daisies. If you enjoyed the video, make sure you hit that like button, subscribe if you're new, and follow me on Instagram at only_Daisy. And I'll see you guys in the next one. Peace. जो है दिल की रानी उसको भी सुनानी, याद है फसाना मेरा. हुई कोई कहानी मिल गई दिल की निशानी तो जो मुझे ये जिंदगानी ना चले all night. Let's go party tonight. Throw down the road. Where's the body tonight? All the doors closed. सपनों की सन है सपनों की रातें
party tonight. जिस दूसरे नजर से देखना बोलते ना, वैसे तो मैंने ये मूवी देखी नहीं क्योंकि मैंने सुना था तभी कि फ्लॉप है या कुछ ऐसे कि जो हम लोग हैं जो उस मूवी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और तब हम छोटे भी थे वैसे, कभी अलविदा ना कहना जब आई थी, तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। एंड बाय द वे पूरे वीडियो के मतलब लाइट गई लाइट आई, कितनी सारी चीजें हुई इस वीडियो के थ्रू। मैंने जाके दरवाजा खोला, खिड़की खोली, मुझे पता नहीं बैकग्राउंड से कोई आवाज आ रही थी या क्या हो रहा था या कुछ, बिकॉज मैंने ईयरफोन्स पहने थे, बट पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है जब हम दरवाजा वगैरह खिड़की ओपन रखते हैं तब। आई डोंट नो आवाज के बारे में। एंड गॉड, ऐसा हस्बैंड जो बात बात पे ईगो पे ले ले, मतलब कि हाँ तो मुझे नीचा दिखाना चाहती है, हाँ तो मुझे ये करना चाहती है, हाँ ओ माय गॉड इट्स वेरी इरिटेटिंग गाइस, मतलब कुछ ज्यादा इरिटेटिंग हो जाएगा ये सारी चीजें। इवन वैसी वाइफ होना जो रानी मुखर्जी है, जो बात बात पे मैं माँ नहीं बन सकती, बच्चा बनना बंद करो, अब सिर्फ साफ सफाई एंड ऑल में ध्यान है उसका। ओ गॉड, मैरिज इज वेरी बिग थिंग ना, इसलिए बोलते कि बहुत बड़ी चीज है वो, ऐसे ही नहीं किसी के साथ कर सकते। खतरनाक था ये। वैसे चीटिंग तो किसी भी चीज में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो ये मूवी में चीटिंग के अलावा मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। आप किस नजरिए से देखते हैं आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। तो ये था मेरा रिएक्शन ऑन द वीडियो कभी अलविदा ना कहना, द रीविजिट बाय ओनली देसी। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो गाइस, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे ही मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी परत नहीं आले।